Morning students, I am Arvinder Singh Maan, your PGT Commerce. Now today we will take on chapter number 2 from Indian Economic Development. In the previous videos we have gone through the chapter number 1, the Indian economy on the eve of independence, where we have seen the lot of topics on handicrafts, the way how the Britishers has handled the country, the demographic conditions, industrialization at the time of Britishers. Now in this chapter, we will take on the Indian economy from 1950 to 1990. Now when we got the independence in 1947, we woke up with the new dawn of freedom. हम उस जगह खड़े थे जहां हमें अपने राष्ट्र का निर्माण करना था एक नए सिरे से. Now, Pandit Jawaharlal Nehru thought of keeping the same situation as we had in the Soviet Union. Now the production and the factories and the farms belongs to the country and owned by the government. But Pandit Jawaharlal Nehru was not interested in keeping this kind of formation in the country. Now he talked with the other leaders at that time, and they find out the mixed type of economy which sustained between the two extremes of capitalism and socialism. हमने एक बीच का रास्ता अपनाया जो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में था. Now in India, the socialist society with a strong public sector was introduced and the democracy was held. We made up the plan for encouraging the government sector also and private sector also. और उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 पास हुआ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड द आउटलुक. और हमारा जो दृष्टिकोण था वो ये था कि इस तरह का संविधान इस देश को दिया गया जहां हमने प्राइवेट सेक्टर और सोशल और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों को ध्यान दिया गया. इस तरह का सेटअप किया गया. जवाहरलाल नेहरू ने एक संवैधानिक संस्था का निर्माण किया जिसे प्लानिंग कमीशन कहते हैं. द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950. नाउ व्हाट इज द इकोसिस्टम in this world? So ecosystem means to resolve the problem of central problems of the economy. किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, वो ही है इकोनॉमिक सिस्टम. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेस जस्ट बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस. अगर रिसोर्सेस कम होंगे तो प्रॉब्लम तो रहेगी. किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom टू प्रोड्यूस. These 3 topics has been taken in microeconomics, and at the time of microeconomics we will discuss in detail about these factors. Now we are going toward the capitalist type of economy. Capitalist type of economy means the entire production comes in the hands of private sector. सारा का सारी संपत्ति और सारा का सारा कंट्रोल जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है. एंड द प्रोडक्शन लाइज द डिमांड एंड सप्लाई. दीज आर द 2 mechanisms. They are free. The market forces allows to decide what to do, how to produce and to whom to produce. Now in socialist type of economy, we see that the production is owned and controlled by the government, and the government has to decide about the production. Now government के हाथ में होता है, और जो बेस्ट एग्जांपल है वो है रशिया. और हमें तो वो ही सामान लेने हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट मार्केट में अवेलेबल कराती है. लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं और हम जो फीडबैक देते हैं उसी के आधार पर प्रोडक्शन होता है. और मिक्स्ड इकोनॉमी एक अलग तरीके की होती है जो हमने जिसको अपनाया.
how to produce, what to produce, to whom to produce are decided by, in the mixed economy, decided by the government also and the private sector also. Now, what is the difference between the capitalist, socialist and mixed economy? सबसे पहला है नेचर. सबसे पहला है नेचर. उसमें हमारे 3 सेगमेंट हैं: मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. नेचर कैसा होता है? फ्री है, फ्री मार्केट फोर्सेस हैं. मार्केट फोर्स जो है, डिमांड और सप्लाई, वो ही तय करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे चलेगी. यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में. और मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और प्राइवेट एंटरप्राइजेज होते हैं वो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करता है. नाउ मोटिव्स मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट जो होता है वो मोटिव होता है. सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही होता है. रोल ऑफ गवर्नमेंट. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर पे तो गवर्नमेंट का रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर पे पार्शियल रोल होता है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता. नाउ सॉल्यूशन इन सेंट्रल प्रॉब्लम्स. नाउ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इज सॉल्व्ड हियर. द सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द प्राइस मैकेनिज्म. क्योंकि सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर कनेक्टेड है, और डिमांड और सप्लाई से ही मार्केट की जो प्राइस है वो तय की जाती है. यहाँ पर प्लानिंग मैकेनिज्म है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है. यहाँ पे मिक्स्ड फॉर्म है, प्राइस मैकेनिज्म, और दोनों ही लागू होते हैं प्लानिंग मैकेनिज्म. नाउ कंपटीशन एग्जिस्ट. यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. यहाँ सोशलिस्ट में कोई कंपटीशन नहीं है. द कंपटीशन एग्जिस्ट ओनली इन द प्राइवेट सेक्टर. नाउ मैरिट्स. नाउ इट फॉस्टर्स सेल्फ इंटरेस्ट. यहाँ तो सबको सेल्फ इंटरेस्ट है, हमारा खुद का ग्रोथ होना चाहिए. यहाँ सोशल जस्टिस है, लोगों का विकास होना चाहिए. यहाँ इंश्योर द कंज्यूमर सॉवरेनिटी. यहाँ कंज्यूमर्स को ज़्यादा ध्यान देता है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है. नाउ सोशल इंटरेस्ट इज नॉट बीन सीन. दैट इज द बिगेस्ट डिमेरिट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. यहाँ सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम कंज्यूमर को ध्यान देते हैं, गवर्नमेंट ही सब कुछ तय करती है, कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता. ना पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में मिक्स्ड होता है. नाउ व्हाट टू प्लान. द प्लान स्पेल्स आउट द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, कि हाउ टू यूज इट. प्लान का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज आपके हैं, आपके पास हैं, किसी राष्ट्र के पास हैं, तो उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमें अपने गोल्स को अचीव करना होता है इन द स्पेसिफिक पीरियड्स. नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग. नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि देश की सरकार ये तय करती है कि उनके टारगेट्स क्या हैं, उनके पास रिसोर्सेज क्या हैं, और कितने टाइम फ्रेम के अंदर हमें उस काम को पूरा करना है. दैट इज व्हाट द इकोनॉमिक प्लानिंग इज. कि इन अ टाइम फ्रेम मैनर, इन अ स्पेसिफाइड टाइम, you have to complete your targets with the available resources in this country. Now, what are the goals or the objectives of planning in India? India में क्या goals हैं? Planning in India 5 साल 5-year plan को हमने घोषित किया. 5 साल, हर 5 साल के अंदर हमने एक नई प्लानिंग बनाई. प्लानिंग कमीशन 1950 में वो सेटअप हुआ था, जो इस बात को ध्यान रखता था कि कितना फंड सैंक्शन करना है और किस स्टेट को कितना देना है. द लॉन्ग टर्म प्लान इज पर्सपेक्टिव प्लान, और इसमें लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड किया जाता था, 5-5 साल के लिए डिसाइड किया जाता था. नाउ व्हाट आर द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहला है ग्रोथ, modernization, self-reliance, equity and full employment. Thank you students and have a nice day.